the Medical Retina Fellowship under supervision of Dr. Nipun sir. I would like to request Dr. S.K. Dutta sir to deliver the take-home message to excel in the art and science of ophthalmology. Dr. S.K. Dutta sir. पहले डॉक्टर योगेश और डॉक्टर सुवर्णा को अपनी फेलोशिप पूरा करने पर बहुत बहुत बधाई। आशा आपने डॉक्टर निपुण के कुशल निर्देशन में अच्छा नॉलेज प्राप्त करी होगी, आपके भविष्य में काम आएगी। आजकल क्या एआई का ज़माना है, तो इसमें आदमी को एक अपना स्किल बेस्ड होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी स्किल आपने होना चाहिए जो एआई नहीं कर पाए। इसमें जैसे रेटिना आपने स्किल सीखी, तो इसको क्या टाइम टू टाइम आप इम्प्रोवाइज़ करते रहे, तो इससे क्या है कि आप कम्पीट कर पाएंगे आगे। और दूसरा है कि जैसे आप जैसे शुरुआत करेंगे काम की, तो गेस्ट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ये आना चाहिए व्हाट नॉट टू डू। अब काम तो सब कर लेते हैं, लेकिन ये काम नहीं करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई कई बार गलत कैसे आता तो फिर अपनी बदनामी होती है, तो आगे के लिए फ्यूचर के लिए सही नहीं होता। तो एक दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा आप काम करेंगे, पर स्किल आप इम्प्रोवाइज़ करते रहना टाइम टू टाइम। और आप भी कोई स्किल सीखें, क्योंकि अब आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। काम की वैल्यू है, स्किल की वैल्यू है। तो हर आदमी में एक एक गुण अलग से होना चाहिए जिसमें वो परफेक्ट हो। थैंक यू। Now I would like to request Dr. Subhash Gupta sir to share his pearl of wisdom to Dr. Yogesh, Dr. Suvarna and Dr. Rahul. Dr. Subhash Gupta sir. डॉक्टर योगेश और डॉक्टर सुवर्णा को ये फेलोशिप सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। कुछ भी सीखने के लिए एक लगन होना जरूरी है, और वो जो लगन है वो इन दोनों में दिखी। और मैं ये बिल्कुल पूरा विश्वास रखता हूँ, बहुत कुछ सीखे जाएंगे यहाँ पे, और अपनी यादें छोड़ के जाएंगे यहाँ पे, और बहुत कुछ सीखे जाएंगे यहाँ से। ये है आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि स्किल बहुत जरूरी है आज के ज़माने में। और जब सर ने बोला कि एआई का ज़माना है, तो वो पार्ट भी आगे के लिए आप दोनों के लिए बहुत बहुत विशेष कामयाब रहे हमेशा। थैंक यू। Thank you very much, Dr. Subhash Gupta sir, for sharing the valuable pearl of wisdom. Is mentioned very nicely, very correctly by Dr. S.K. Gupta sir, that we are living in the era of artificial intelligence, and in this era we have to learn. Everyday things are changing very fast. We have to keep us updated, and we have to keep learning, keep growing, and keep to present the fellowship journey and to share the take-home message for Retina Fellow Dr. Yogesh sir and Dr. Suvarna madam. Dr. Suvarna for completing their short-term medical retina and uvea fellowship, and इनके fellowship के दौरान during their fellowship they learned many interesting cases, and what I learned, and मतलब आप निरंतर आप प्रयास करते रहे, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, पर अपन को मेहनत नहीं छोड़नी है। निरंतर अपन 24/7 अपन कोशिश करते रहेंगे, तो कोशिश जैसे कि सर की पंक्तियों में है और हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियों में कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसलिए निरंतर आप बिल्कुल प्रयास करते रहें। एंड जस्ट throwing some light on the fellowship journey, Dr. Suvarna came from Adelaide, South Australia, in Paramanand Eye Hospital, Delhi, and MBBS from China, and then he was a consultant at Mishri Devi Eye Hospital, Alwar also. So they got to know about the short-term medical retina and uvea program here at Subi Eye Hospital. So they contacted me, and through this brief journey, they diagnosed many patients with indirect ophthalmoscopy of peripheral retinal degeneration like lattice degeneration, lattice with holes, retinal horseshoe tears, even retinoschisis. We posted a case also, and many cases of proliferative diabetic retinopathy. They did PRP also, and vein occlusions, and they gave intravitreal injections for vein occlusion with macular edema. Not only that, wet age related macular degeneration
we diagnosed and treated many cases of wet age-related macular degeneration. We saw many cases of idiopathic intracranial hypertension, neuroretinitis. Recently we saw a case of interesting case of post-pyrexial retinitis also with neuroretinitis. Along with that, in surgical retina, we saw cases of total retinal detachment, bullous retinal detachment, thick ERM, non-resolving vitreous hemorrhage, even macular holes also. And in uveitis, we saw cases of acute non-granulomatous and granulomatous uveitis and even panuveitis, जिसमें HLA-B27 associated, even sarcoid vasculitis, TB, choroiditis, and all these cases of even toxoplasmosis. These interesting cases we saw. And during the OCT interpretation, we interpreted the OCT of many diseases such as diabetic macular edema, vein occlusion, macular edema related to vein occlusion, wet age-related macular degeneration, and interpreted many interesting OCT cases also. Like OCT interpretation is very important in medical retina because आगे further the management and treatment changes. And we interpreted the B scan to differentiate retinal detachment from PVD, vitritis, vitreous hemorrhage, retinoschisis from retinal detachment, even choroidal detachment. And they did many independent B scans also. And they did laser of multiple lattice degeneration. I have a video showing they did panretinal photocoagulation, sectoral PRP as well on slit lamp, as well as laser indirect ophthalmoscopy using Pascal method also. And they recently we did a case of horseshoe tear and retinoschisis with retinal holes. We barraged it, and this is the video. During the Dr. Suvarna doing the slit lamp laser photocoagulation on the slit lamp, PRP and barrage. Yogesh sir practicing on doing the laser photocoagulation on slit lamp, and even on LIO. Ma'am did on LIO the barrage laser. Just forward it a little bit, and Yogesh sir also doing the on the LIO, and they injected many hands-on on many intravitreal injections, including Avastin, bevacizumab, ranibizumab, brolucizumab, and even aflibercept injection, and hands-on training in intravitreal triamcinolone also. And they presented case on Dr. Sai Lakshmi Suvarna ma'am presented on vein occlusion in young patient, interesting case of vein occlusion in young patient, and sir presented on Dr. Yogesh sir presented on retinal laser protocol parameters and practical tips on retinal lasers. We are in the process of publishing interesting case report on choroidal metastasis secondary to breast carcinoma, and one more interesting case report of post-pyrexial retinitis secondary to dengue fever. So last but not the least, I would like to thank my alumni, Bharatiya Vidyapeeth University, Shankar Eye Foundation, Arvind Eye Care System, and Shankar Nethralaya, and to thank you to Dr. Suresh Pandey sir, Dr. Vidushi ma'am, Dr. S.K. Gupta sir, and Dr. Abhishek Kothari sir. And we started this fellowship in January, in September-October 2023, and we are in touch with our fellows through the WhatsApp group, and we share interesting cases and discussions. And for the benefit of the fellows, I have written many books along with Dr. Suresh Pandey sir, and so these books are available on Kindle, so soft copy is there. तो आपको भी अपनी थोड़ी skills जो अगर अपडेट करनी है तो इस बुक में थोड़ा जो है वो उनको पढ़ सकते हैं, ताकि थोड़ा अपना स्किल और नॉलेज भी अपडेट हो. And they also got a chance to visit the east side Chambal riverfront, and Yogesh sir we also had the opportunity to visit to attend the Chambal Maha Aarti. And congratulations to Dr. Suvarna ma'am, Dr. Yogesh sir
for successfully completing the short-term fellowship in medical retina in UVA. And last but not the least, thank you to the team Suvi Hospital. Without आपके support के बिना this would not have been possible. Thank you. Thanks. Thank you very much, Dr. Nipun, and congratulations for mentoring Dr. Suvarna and Dr. Yogesh and Dr. Rahul. Now I would like to request Arun ji to come forward and welcome Dr. S.K. Gupta sir. मालाओं के साथ Dr. S.K. Gupta sir, जो कि he is the most senior ophthalmologist and at age of 70 plus also he is inspiring us. So सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी हेल्थ और अपनी एक मोटिवेशन, आपकी पंक्चुअलिटी एक मिसाल है, डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर की भी पंक्चुअलिटी एक मिसाल है, कुछ राज साझा करें सबके साथ कि आपकी पंक्चुअलिटी का, आपकी हेल्थ का और आपकी लाइफ में सक्सेस का क्या राज है. दिस इज़ वेरी सीक्रेट क्वेश्चन और डॉक्टर साहब, डॉक्टर सर शेयर करेंगे. एक एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हम में से कई सारे लोग जिनकी एज 30 साल हो रही है वही थकने लगे. सलमान खान का एड है, भाग दौड़ की जिंदगी थकना बना है. कौन सी टेबलेट थी वो? एनीबॉडी? भाग दौड़ की जिंदगी थकना बना है, डिवाइडर. इसलिए आप है ना बिना डिवाइडर के सर एनर्जेटिक है, आज भी पंक्चुअल है सरकार. और सबसे बड़ी बात आप लोगों में से, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं सर धर्म का नहीं बोल रहा हूँ आपको, आप लोगों में से जैसे एक होता है जो कि बड़ी मतलब सीक्रेट बात है सभी लोगों को सामने में बोल बोलता मेडिकल कॉलेज की टाइम में हो, उसका मैं हिंट जरूर देता हूँ आपको. वो हिंट है ग्लूकोज टॉलरेंस टाइम, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट. तो क्या होता है कि कहीं टिक के बैठना भी बड़ा मुश्किल होता है. कई स्टाफ वाले जो एक रिफ्रेशमेंट करते हुए ऑफिस बाहर चले गए, कई लोग हैं जो एक मेडिसिन दे दी बाहर चले गए, तो घूम के आ गए. हमारे डॉक्टर दिनेश साहू सर थे जो काफ़ी सीनियर थे वैसे, तो उन्होंने पढ़ाया भी था. तो वो बीच में फिर थोड़ा सा उनकी स्मोकिंग वगैरह की लत लगी, उनकी अरविंद से थे, तो वे बीच में उठे सर एक पॉक मार के आ गए. तो क्या होता है टिक के बैठना बहुत बड़ी बात है, टिक के बैठा जाता है. तो सर प्लीज साझा करें. प्रेशर टेस्ट कोई खास बात नहीं है. थोड़ा सा कोई भी काम कर रहे हैं इसमें रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है. जैसे आप मॉर्निंग वॉक चालू किया, 2 दिन गए, फिर 5 दिन नहीं गए, वो चीज़ नहीं होती. इसमें एक तो अपना लाइफ का रूटीन बनाया. दिन में 5 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, फिर पहले डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना है, पानी पीना है, फिर वो सबके फिर मॉर्निंग वॉक पे जाना है, फिर योगा करना है. मतलब कुछ रूटीन रखें और उसको कंटिन्यू करें. तो मैं पिछले मतलब 40 साल से तो मेरा रूटीन है पक्का. 40 साल को पता लगता है कि आप 13-14 साल का था जब से मैं गांव में पैदल घूमना सब चालू कर दिया था. जहाँ तक हो सके पैदल चले. गाड़ी भी आप थोड़ी दूर खड़ी करें, पैदल आ जाए, हम बाद में पैदल चलेंगे. दूसरा क्या डाइट का ध्यान रखें. आजकल क्या ये है तपाकू, ये सब कुछ जिंदगी बर्बाद हो रही है. ये प्रोडक्ट टाइम से खाना है, टाइम से पानी पीना है, हर चीज़ का टाइम टेबल बना कंटिन्यूटी रखें उसमें. और टाइम से सोना है, स्लीप भी बहुत ज़रूरी है. 6 से 8 घंटे रात को मोबाइल नहीं देखेंगे. सोने के 3 घंटे पहले मोबाइल बंद करते हैं. और टाइम से सोना, जब 10 बजे सोना तो रोज़ 10 बजे सोने के कुछ भी हो जाए. और सुबह 5 बजे उठना है तो उठना है. मतलब इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, खाली रेगुलरिटी रखना है और कंटिन्यूटी रखना है. तो आप आराम से 100 साल की ज़िंदगी जिएंगे. धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. सर ने $1 मिलियन बात बताई. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सर ने बताई है वो ये है कि आपको गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी करें, थोड़े चलने फिरने की आदत डालें. और इसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं नीट, NEAT. नीट का नाम तो सबने सुना होगा आप लोगों ने, NEET. व्हाट इज़ नीट? NEAT क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? नहीं, वो वाला नीट नहीं, वो तो NEET है. NEAT जो सर ने बताया कि थोड़ा गाड़ी दूर खड़ी करें, थोड़ा चलने फिरें, तो वो उसको बोलते हैं नीट. क्योंकि अभी एक स्टडी हुई है, उसका कोई फुल फॉर्म बता सकता है? व्हाट इज NEAT? उसका नाम है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. आई विल रिपीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस. ये सर के बहुत $1 मिलियन बात है. एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट यू टू फॉलो दिस.
नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो आप लोगों में से शोले किसने देखी है? देखी शोले? शोले पिक्चर में एक डायलॉग आता है, अरे ओ चमक छल्लो, जब तक उसके पैर चलेंगे, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी। जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी, और तेरे पैर रुके तो गोली चलेगी, डिशिंग डिशिंग डिशिंग। तो ये शोले पिक्चर का डायलॉग है जो कि गब्बर ने बोला है। और आज की जो सर ने मैसेज दिया है, आज की जो आराम तलब जिंदगी है, दैट इज अनदर गब्बर। दिस डायलॉग कैरीज $1 million मैसेज। सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, बैठना एक नई सिगरेट है। सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, मूवमेंट इज मेडिसिन, मोशन इज मेडिसिन। तो सर ने जो मैसेज दिया है वो सभी लोगों के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा कि जब भी कोई स्टाफ लिफ्ट से जाता है तो कई बार मैंने आप लोगों को टोका ना कि लिफ्ट यूज़ मत करो आप। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जैसे सपोज आपके घुटने ख़राब हैं या कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक कुछ हो रहा है, तो आप लिफ्ट यूज़ करो, दैट्स अनदर स्टोरी। पर आप लोगों में से अधिकांश लोग यंग हैं, बहुत कम उम्र के हैं, तो जितना आप सीढ़ी चढ़ते हैं उतना ही आप नीट को फॉलो कर रहे हैं, नॉन एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, गाड़ी को दूर खड़ी कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम 24 घंटे में से 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं और बाकी 23 घंटे या तो सोफे पे बैठते हैं या फिर हम घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो हम अपने आप को एक्टिव काउच पोटैटो बना रहे हैं, एंड दैट्स नॉट गुड। द मोमेंट यू सिट ऑन दी सोफ़ा और चेयर, आपकी पूरी बॉडी का जो मसल से वो उसकी एक्टिविटी बंद हो जाती है, और जैसे मसल की एक्टिविटी बंद होती है आपके अंदर ATP वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होना बंद हो जाता है, आपके अंदर हार्मोन्स जो मायोकाइनेस सिक्रेट होना बंद हो जाता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज गिवन बाय सर कि ऑलवेज डू स्मॉल मूवमेंट, कुछ न कुछ मूवमेंट करते रहें, जिससे कि आपका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस आपको चलता रहे। और जैसे आपने बोले जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक उसकी सांस चलेगी, और तेरे पैर रुके तो गोली चलेगी। तो आज क्या हो रहा है, सुबह उठते ही द मोमेंट यू गेट अप इन द मॉर्निंग, सबसे पहली गोली होती है स्टार्ट एसिडिटी की गोली। सबसे पहले ओमेज खानी पड़ती है, यार एसिडिटी हो रही है। द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू स्टार्ट द डे विद एसिडिटी की गोली। थोड़ी सी ब्रेकफास्ट करने से पहले डायबिटीज़ की गोली, उसके बाद थोड़ा सा दिन चढ़ता है 11 बजे ब्लड प्रेशर की गोली। एक गोली से कंट्रोल नहीं होता तो 2 गोली ब्लड प्रेशर की, सुबह भी लेनी शाम को भी लेनी है। उसके बाद फिर शाम को 7 बजे कोलेस्ट्रॉल कम करने की गोली, और रात को सोने से पहले टैबलेट अल्प्राजोलाम 0.25 मिलीग्राम से स्टार्ट होती है कि नींद नहीं आती है। तो ये है जो गब्बर ने जो बात बोली थी वो सच्चाई है। आज का सोफ़ा, आज की आराम तलब ज़िंदगी, ये इस युग के गब्बर हैं। This is the biggest enemy. So this is a very $1 million message. I want to, you to follow this message. Now I would like to invite Bhupendra Gautam ji to come and welcome Dr. Nipun sir. Dr. Nipun has trained more than कितने हो गए सर? 27 फेलोज। जोरदार तालियां निपुण सर के लिए। और निपुण सर से मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि निपुण सर कभी अपने बारे में ज़्यादा बताते नहीं है, कि सर आपके पेशेंस का क्या राज है? आप इतना पेशेंसली फेलोज को ट्रेन करते हो, ये पेशेंस क्या आपको विरासत में मिला है या आपने अपने आप डेवलप किया है? इतना शांत स्वभाव, हर चीज़ को, हर मरीज को बड़े ध्यान से देखना, इतने ध्यान से देखना कि जो मरीज को दिखाने वाला जो अटेंडेंट होता है वो भी उसके भी पैर चलने लग जाते हैं, यार कि कब मरीज खत्म होगा, कब मैं बाहर निकलूँगा, है ना। तो इसलिए इतने ध्यान से आप देखते हैं कि जो मरीज डॉक्टर निपुण सर को एक बार दिखा लेता है वो कभी भूलता नहीं इनको। एक मरीज ने तो इनकी मतलब जो बोलते हैं ना, पूजा में भी फोटो लगा रखी निपुण सर की, जितने ध्यान से देखा। तो कई मरीजों ने बोला मुझे आके, सर आपके जो डॉक्टर निपुण है उन्होंने जितने ध्यान से देखा, मेरी जिंदगी में इतना ध्यान से किसी ने देखा नहीं। मैं LV प्रसाद होके आ गया, मैं शंकर नेत्रालय होके आ गया, मैं सब शॉप में दिखाया, इतने ध्यान से देखा नहीं। थोड़ा सा उस राज को आप साझा करें, क्या राज है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं है। जो मैं चाहता हूँ कि मरीज़ को मतलब मैं पूरा अच्छे से देखूँ, ताकि मरीज़ को भी सेटिस्फैक्शन हो और मेरे को भी सेटिस्फैक्शन हो।
कि मैंने पूरी तरीके से देखा है। एंड बेसिकली मेरे मन में ये रहता है कि हम लोग स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, ये जो शब्द है कि हम लोग एक्सीलेंस के पीछे, जैसे 3 इडियट्स में भी आमिर खान ने बोला था कि वी शुड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, तो सक्सेस अपने आप आएगी हमारे पास, हमको सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो हम हर एक पेशेंट को उसका एक्सीलेंट आउटकम के उसमें देखें कि उसका कैसे हम एक्सीलेंट आउटकम कर सकते हैं। तो यही वजह है कि मतलब इस वजह से मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ और कुछ। बहुत बहुत बधाई सर, इसी तरह से आप ध्यान से देखते रहे सर और मरीज आपसे खुश होता रहे। अब मैं इनवाइट करूँगा विमल हांडा जी से, जो कि पिछले 25 साल से काफ़ी इनका अनुभव रहा है, और वेलकम करने के लिए डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर, विमल हांडा साहब, डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर का स्वागत। और डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर के लिए कुछ एक सवाल कि सर आपकी पंक्चुअलिटी की मिसाल मैंने सभी डॉक्टर से सुनी है, सीनियर डॉक्टर की सभी पंक्चुअलिटी की मिसाल की दाद देते थे। और अभी मैं जब मुझे जाना था, मैं बड़ा टेंशन में था यार कि अब कोई रिपोर्ट सर भी, मतलब उससे मेरे साथ रिपोर्ट सर ही थे, गुप्ता सर भी बाहर थे। तो फिर मैंने सर से बात हुई, इस टाइम सर से कन्वर्सेशन हुआ। तो फिर दूसरे दिन स्टाफ ने फ़ोन किया कि सर डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर तो 8:55 पे आ गए, मतलब स्टाफ पहुंचा उससे पहले आ चुके हैं। तो पंक्चुअलिटी सर की जोरदार तालियां सर की पंक्चुअलिटी के लिए। और सर ये गुण कब से आपको मिला सर, और कब से आप इस पंक्चुअलिटी वाले पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं सर? ये मेरे को जब मैंने अरविंद आई हॉस्पिटल से फेलोशिप करी थी तब से ये आदत पड़ी हुई है। वहाँ पे जो हमारी मैडम थी नाचिया में, वो बहुत ध्यान रखती थी पंक्चुअलिटी का, फेलोज कितने पंक्चुअल हैं अपने टाइम के लिए, और उसके बाद से ये पंक्चुअलिटी है। पर मैं हमेशा क्या करता हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मार्जिन लेके चलता है, कहीं भी जैसे पहुँचना होता है। तो जैसे मान लो कोटा से, बूंदी से कोटा जाना है तो 1 घंटे का टाइम लगता है, तो उसमें 15-20 मिनट का मार्जिन लेके चलता हूँ हमेशा, तो कवर हो जाता है। बस यही एक इसका इलाज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर का कि हमेशा मार्जिन लेके चलें। जब भी आप पहुंचने वाले हो तो 10 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेके चलें, क्योंकि कई बार ट्रैफिक जाम हो सकता है, गाड़ी पंक्चर हो सकती है और आपको टाइम लग सकता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा रोशनी जी से टू कम फॉरवर्ड एंड वेलकम डॉक्टर सुवर्णा मैम। डॉक्टर सुवर्णा मैम का स्वागत करें कुछ मालाओं के साथ। और डॉक्टर सुवर्णा मैम से मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर सुवर्णा मैम टू शेयर, जोरदार तालियों के साथ I would like to request Dr. Suvarna ma'am to share her experience of fellowship, retina fellowship under mentorship of Dr. Nipun sir. Good morning everyone. And firstly, I thank everyone for giving this opportunity for me. And during this short journey, I learned many things. And I got a great opportunity to work in this institute under Suresh Pandey sir, Dr. Nipun sir, and Subhash sir and Gupta sir, and I'm really very glad for this thing, and I could able to see different types of cases. This is really a strong base for my future endowments and all, and I'm happy that I could able to learn many things and many more to learn, and looking forward for that. Thank you so much sir for the support, and I learned many things from Dr. Yogesh sir as well. Thanks a lot, and I learned just a line of Hindi sir. If anything mistake in that, just mind me. आप सबका दिल से बहुत धन्यवाद. Thank you so much. So I have a question for you. That when I visited Madurai in South India, it was really hard for me, and I think Dr. Subhash Gupta sir and Dr. Nipun sir Dr. Gupta sir also can endorse me that, or support me or agree with me that, once you go to South, difficult, language Tamil is really hard. So did you find difficulty in understanding the patient, who were speaking Hindi here? Or you are understanding a little bit? No, in the starting I really felt very difficult. The staff and all sir and Yogesh sir, Nipun sir, everyone helped me a lot to understand the things and all. By now I'm not completely understanding, but little bit better. Yes. If I stay for a few more months or something, I could able to get more, I feel. Great.
Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Now, I would like to invite Devraj ji, please come, to come forward and welcome Dr. Yogesh sir. Dr. Yogesh sir came from Surat and he can speak very nice Gujarati, kem chu, barabar chu. And I would like to request Yogesh sir, big round of applause for Yogesh sir, to share his experience of fellowship under mentorship of Dr. Nipun sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक महीना कैसे चला गया पता ही नहीं चला। ये जब से मैंने मतलब DNB में था तब से मेरा वो था कि मुझे रेटिना में फेलोशिप करनी है, तो लॉन्ग टर्म में तो कोई चांस नहीं मिला, लेकिन जब भी ये चांस मिला तो बहुत यहाँ पे मैंने ले लिया। निपुण सर से बात करी और काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे मैंने नई मतलब लेज़र के टेक्निक्स एंड सारे बहुत अच्छे से सीखा। निपुण सर ने बहुत अच्छे से सिखाया। और दूसरी चीज़ पांडे सर से भी मिलने का मौका मिला। जब हम DNB में एडमिशन लिए थे तो क्या था कि फेको में इतना कहाँ से सीखे, तो उस टाइम पे यूट्यूब पे कुछ ही सर्जन्स की वीडियो होते थे, उसमें से एक पांडे सर की भी थे, तो वही वीडियो सीख के हमने मतलब देख के फेको वगैरह सीखा था। यहाँ आके मतलब सर से और सीखने का मौका मिला और थैंक यू। I would like to invite Dr. Nipun and Dr. Pandey sir. अभी एक खास थैंक यू सर। एक खास मौका है डॉक्टर निपुण सर की जो बुक्स की जर्नी रही है वो बड़ी शानदार रही है, और डॉक्टर निपुण के लिए पंक्तियाँ कि जिस प्रकार से निपुण सर ने बताया कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो मैं पंक्ति सुना देता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न चले सी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उसका विश्वास इसी हिराने में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये पंक्तियां निपुण सर के लिए 200% करेक्ट है। जोड़ा तालियां। निपुण सर ने अपनी मेहनत से कई सारी पुस्तकें लिखी और आज एक खास अवसर है कि निपुण सर की पुस्तक डॉक्टर गुप्ता सर, डॉक्टर सुभाष गुप्ता सर और फेलोज डॉक्टर सुवर्णा मैम, डॉक्टर योगेश सर और समस्त टीम के साथ आज हमने पुस्तकों को भी डॉक्टर निपुण सर से सुनाई है, क्या लिखा है उन्होंने, किस प्रकार से उनकी जर्नी रही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हॉस्पिटल में जब भी आप कोई काम करते हैं तो एक जो बॉन्डिंग होती है सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये बॉन्डिंग हमारी बनी रहे, हमारा विश्वास मरीजों में बना रहे, टीम की सदस्यों के बीच बॉन्डिंग बनी रहे, और सभी पेशेंट जो भी आते हैं वो सब खुश होकर जाए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर उदयश्री मैम से to say few words. If patients come first, we should make sure that we attend to them. Wish you all the very best. Keep learning. Learning is an ongoing process. It goes on for life. And keep learning from wherever you can. It's not like you can only learn from your seniors or other doctors. Lots of people teach you lots of things about life. So keep learning from wherever you can get life and keep an open attitude so that you don't form any rigid ideas. Because just there's I'm speaking in English because I think more than Hindi. बाकी लोगों को क्या वो समझ आ रहा है. The world is changing so fast, so rapidly that flexibility is going to be the key thing in the years to come. So anybody who can evolve with whatever changes are coming, like in the last 200 years, it might have changed at a certain speed, and that same changes will probably happen in a decade now. So flexibility is going to be very, very important. So that is why people who come up now, they will probably have to change. The academics might remain the same. The theory behind ophthalmology will remain the same. But the way you deal with patients, the way you deal with people, the way you work in society, that is all going to change very fast. So be very flexible about this. Thank you so much. I Now, hope जिन लोगों को
ज़्यादा नहीं समझ में आया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा फटाफट बोल दिया। तो ये है कि प्रकृति बदलाव का नियम है और ये बदलाव अभी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं ना, तो इसलिए सब लोग अपना एक रिजिड एटीट्यूड नहीं बनाएंगे कि हम हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने अपने ये देखा था तो ये है। अब आपको जल्दी जैसे जैसे दुनिया बदलती है अपने एटीट्यूड को बदलना सीखना पड़ेगा। यही चीज़ें लोग बहुत बोलते हैं AI आएगा तो क्या होगा, AI आएगा तो ये होगा कि हम सबको भी उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। Now I would like to request Dr. Gupta sir, Dr. Nipun sir to come forward. Subhash Gupta sir and Gender Certificate. Thank you. Now I would like to request Nipun sir to say a few words about this book, and Dr. Gupta sir, Dr. Subhash Gupta sir, Dr. Vidushi ma'am will unveil this book in presence of Dr. Suvarna ma'am and Dr. Yogesh sir. So Dr. Nipun sir, please say a few words about this book. This is a wonderful book written by Dr. Nipun sir. तो ये बुक के माध्यम से मैंने जो प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट, मतलब अपने कंफर्ट जोन से हम लोग बाहर निकलें ताकि हम आगे एक्सेल कर सकें। तो जैसे मैं जिस शहर में मैं गया, कोयम्बटूर हुआ, चेन्नई हुआ, तो वहाँ पे जो उन लोगों से मैंने बात करी जिन्होंने एक्सेल करा है, तो किस प्रकार से वो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने जो ऑटो पायलट, मतलब जो एक रूटीन लाइफ से निकलकर उन्होंने अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए जो जो अचीव किया, तो उनको अपना थोड़ा कंफर्ट जोन छोड़ के तो उन्होंने अचीव किया और हर एक दिन अपने लिमिटेशन को कम किया। तो कैसे कैसे उनकी जर्नी रही, हर एक चैप्टर में हर एक का उनका वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है कि कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को पूरा किया। तो उससे हमें ये सीख मिलती है। इन दी एंड मैंने भी इसमें लिखा है कि और एक चैप्टर 4 है जो कंफर्ट जोन्स आर कॉफिन्स, तो मतलब जो कंफर्ट जोन है वो एक कब्र की तरह है। तो अब आप उनसे बाहर निकलें और अपने निरंतर एक नई चीज़ प्रतिदिन अगर अपन 1% भी अपने आप को चेंज करते हैं तो हम साल के एंड में बहुत अच्छा बदलाव लाएंगे और अपनी लिमिटेशन को कम करें और एक नई चीज़ हम सीखें ताकि हम जो डेली रूटीन करते हैं तो वो मोनोटोनस हो जाती है, वो बोरिंग हो जाती है। तो एक नई चीज़ हम कुछ ना कुछ सीखते रहें ताकि हमको भी एक किक मिले आगे बढ़ने की और हम मोटिवेट होते रहें। तो ये बुक से मैंने ये प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट कि हम एक थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जोन में कंफर्ट जोन से बाहर निकलें जो कि हमारे लिए और पेशेंट्स के लिए भी प्रोडक्टिव हो। थैंक यू। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर निपुण सर का बधाई, बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुवर्णा, डॉक्टर योगेश सर, डॉक्टर राहुल सर देश के कोने कोने से कुछ सीखने के लिए कोटा आ रहे हैं। दिस इज ए बिग अचीवमेंट फॉर डॉक्टर निपुण सर, फॉर एंटायर सुवी आई फैमिली। और जैसा कि डॉक्टर निपुण सर ने बोला कि कंफर्ट जोन are coffins. The most dangerous address in this world is comfort zone. सबसे दुनिया में यदि सबसे खतरनाक पता कोई है तो वो है comfort zone. तो I want to congratulate Dr. Suvarna ma'am, Dr. Yogesh sir for breaking that comfort zone and coming here for learning something new. तो ये गाना मैं 2 लाइन सुनाऊंगा आपको, आपने सुना हुआ है और इसमें कुछ पंक्तियाँ निपुण सर के बारे में भी हैं, कुछ रचना के बारे में भी है। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। Now next few lines are dedicated to all fellows and Dr. Nipun sir. वो रेटिना के दिन, वो OCT के दिन,
वो बराज लेजर के शॉर्ट्स एवास्टिन की रातें, कई साल हमने गुजारे यहाँ, यहीं साथ खेले हुए हम जवां, पेरीफेरी को स्कैन करते हुए हम जवां, था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। नो आखिरी लाइन बड़ी मैसेज वाली है। निपुण सर ने एक ग्रुप भी बना रखा है एंड निपुण सर ही ऑलवेज पोस्टिंग सम न्यू थिंग्स। ना बिछड़ेंगे फेलोशिप के हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें रेटिना की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, रेटिना कॉलेज फोटो में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं ओटी बिन कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। 3 cheers टू डॉक्टर निपुण सर एंड ऑल फेलोज। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।